morning everyone. Good morning, ma'am. Today we are going to start the types of antibodies. In the last class we have completed till humoral immune response, right? Now we are going to continue from the structure. After the structure we are going to continue from the types of antibodies. So here antibodies क्या होती है? तो antibodies they are the proteinaceous in nature, right? It is a protein which is present in our body during the any of the infection or any of invader in our body, right? So it is protein in nature. These antibodies are having, if we talk about the structure of antibodies, so structure of antibodies के अंदर क्या present है? It is having the H2 and L2. H2 and L2 is referred to as H2 is indicated as a heavy chain and L is indicated as a light chain, right? So heavy chain and light chain. This heavy chain and light chain are joined together by disulfide bond. Okay, so it is joined together by disulfide bond, and if you see that it is mostly appear like Y shape. आपको कैसा दिखेगा? ये Y shape का structure दिखता है ऐसा. So it is a Y shape structure. You can for your remembering you can write it like that as well. Okay. Now antibodies जो है, antibodies are differing when it is producing. So we have discussed that it is produced during infection. When you are having any infection during that time, the production of antibodies are there according to the antigens, right? So let's talk about types of antibodies. So types of antibodies के अंदर we have discussed about 5 different types of antibodies are there. That is game. You have to remember it like this. Game. Right? That is it is referred to as an immunoglobulin, gamma immunoglobulin, alpha immunoglobulin, mu immunoglobulin, epsilon and immunoglobulin delta. Okay, so this is the different types of antibodies which are there in our body. Okay, let's talk about how these antibodies are or what is their structure. Are they same in structure or what? Okay, so here जो antibodies है इसमें से भी there are antibodies are divided into the 3 different types again on the basis of their structure. So that is types of antibodies, or we can say we are classifying them in a different types of antibodies on the basis of structure. So on the basis of their structure, तो basic structure हम लोगों ने देख लिया था जिसमें L2 and H2L2 present है, right? So basic structure के हिसाब से वो कितने बार divide होते हैं? तो some are monomeric, then we can say dimeric, or it is pentameric. Okay, so here जो मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज मोनोमेरिक? मोनोमेरिक का मतलब सिंगल, जो सिंगल यूनिट से बना है, जैसे कि जो खाली ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमेरिक कहेंगे. तो मोनोमेरिक के अंदर कौन कौन आएगा? तो यू हैव टू रिमेंबर एज. जैसे एज हम लोग रिमेंबर एज बोलते हैं, राइट? लाइक दैट यहाँ पे आपको याद रखना है एज. ठीक है, इट इज एज. तो इट इज व्हाट इज इट? तो यू कैन सी immunoglobulin E, immunoglobulin G and immunoglobulin D. Okay, then dimeric में कौन आएगा? तो dimeric will be IgA. कौन है dimeric में? IgA. and pentameric के अंदर आएगा आपका IgM. So IgM जो है it is a pentameric structure. ठीक है. Now here, so last time we have discussed the structure of antibody. In that we have discussed that this antibody is having one of the active binding site for antigens. क्या present है उसके पास? It is the active site for antigens. तो यहाँ पे उसके पास क्या है? कोई active site present है. Here they have a active site. Now we know that the pathogens are different. पैथोजन अलग अलग होते हैं, तो एंटीबॉडीज
एंटीबॉडी होगी? नो. सो व्हाट इज ओवर हियर on the basis of their they are involved in the infection, or we can say कि ये लोग जब रिएक्शन करते हैं एंटीजन्स के साथ और कौन से टाइप का एंटीजन आ रहा है उसके बेसिस के हिसाब से इट इज डिवाइडेड. किस में डिवाइड हो जाएगा? तो इट हैज वन विच इज ये है पूरा स्ट्रक्चर हैवी चेन वाला, राइट. इट इज रिफर टू एज अ कांस्टेंट रीजन. तो उसके दो रीजन में कन्वर्ट हो जाता है. रीजन इज कांस्टेंट रीजन and second one is referred to as variable region. So कभी पूछा जा सकता है कि what is a constant region and variable region indicate in antibody. तो एंटीबॉडी में जो constant region indicate करता है that is the H2 वाला जो region है that is whole which is constant. वो ऐसे कैसे ही रहेगा, कभी भी कोई भी एंटीबॉडी में वो चेंज होगा नहीं. So what is change only the antigen antibody जो बाइंडिंग साइट है, जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट है that will be changes. So this is referred to as variable region. क्या कहेंगे इसको? वेरिएबल रीजन कहेंगे. ठीक है, इट इज वेरिएबल. नाउ तो दिस इज अ मोनोमेरिक स्ट्रक्चर. ये क्या है? मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है. डायमेरिक में क्या होगा? तो इफ यू सी डायमेरिक स्ट्रक्चर, तो डायमेरिक के अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है? वी हैव टू ड्रॉ, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली. ओके, यहाँ पे आपका जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, हियर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और दिस टू विल बी जॉइन लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा वाई. एक में सीधा वाई ड्रॉ करना है, एक में उल्टा वाई ड्रॉ करना है. यू कैन शो इट लाइक दिस एज वेल. इसको ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो वन लाइक दिस. अब मुझे बताओ इसके बेसिस के ऊपर देयर आर, वी आर गोइंग टू राइट इट द डिटेल अबाउट. तो दिस इज डायमेरिक हो गया. दिस इसको क्या कहेंगे हम लोग? डायमेरिक कहेंगे. ठीक है. नाउ डायमेरिक के बाद पेंटामेरिक. तो पेंटामेरिक में क्या होगा? क्या होगा पेंटामेरिक के अंदर? स्टार शेप के अंदर यू कैन फाइंड इट लाइक दिस. So this is pentameric. 1, 2, 3. This is 4 and this one is 5. तो ये पेंटामेरिक हो गया. अब यहाँ पे इसकी क्या है? बाइंडिंग साइट है. ठीक है, here it contain its binding site. डायग्राम जो है आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा इसके अंदर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर. ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर will remain same. Okay, now here we have to add how many binding site this particular antibodies are having. Okay, so monomeric antibodies जो होती है उसकी बाइंडिंग साइट कितनी होती है? कितनी बाइंडिंग साइट इसके पास प्रेजेंट है? So it contain 2 बाइंडिंग साइट्स फॉर एवरी. कौन कौन से हैं जो मोनोमेरिक में आएंगे? तो E, G and D. So all E, G and D will be having the binding site that is 2. Whose binding site? That it is antigen binding site. Okay, then dimeric में कितनी होगी? डायमेरिक will be having antigen binding site कितनी है उसके पास? 4. अगर एक में 2 है तो ये तो 2 है, तो how many it is? 4 binding site. तो it is 4. Okay, then penta के अंदर कितना है? It is a pentameric. Okay, in pentameric the binding site, antigen binding site, which binding site we are talking about? It is antigen binding site. तो antigen binding site जो है इसमें टोटल कितनी है? 10 है. ठीक है, it is total 10. Got it? समझ में आ गया वो स्ट्रक्चर? चलो क्विकली इसको कॉपी करो फटाफट. Okay, so now let's continue. Here, this is the structure of different antibodies. Okay, these antibodies how they are present on a cell. So just suppose कि कोई B cell है, we are talking about the B cell over here. Okay, lymphocyte, T lymphocyte. तो उसके ऊपर ये antibodies कैसे present होगी? तो it's like that. They are present like this as a receptor. वो वहाँ पे present होगा. Okay, so ये antibodies जो है उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है बी सेल के ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर होता है. ओके, सो एंड दैट द एंटीजन विल बी बाइंडिंग ओवर हियर एंड देन द रिएक्शन विल बी ऑकर एंड प्रोसेस विल बी डन.
राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कितने परसेंटेज में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन that is IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. So where they involve और कहाँ पे कैसे वर्क करते हैं। तो पहला जो IgG है तो it is the second line defense, it is involved in the second line. But if you see that the first line में कौन दिख रहा है आपको, that is the first line के अंदर आप देख सकते हैं IgM. This IgM क्या इंक्रीज करता है, तो it increases the ingestion and phagocytic activity. राइट, ये किसमें हेल्प करता है, तो कोई भी सेल अगर डैमेज हो रहा है तो ये IgM जो है वो जो प्रोड्यूस होगा, तो फर्स्ट लाइन जैसे सेल डैमेज होने से पहले ही वो फेगोसाइटिक सेल को इंक्रीज करता है, जैसे मोनोसाइट्स को एक्टिव करने का काम ये वहां पे करेंगे, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस। देन IgG जो है इट इज द सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। वी नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, राइट, ओके। एंड इट इज मेजर्ड इन ब्लड, क्या है वो ब्लड के अंदर मेजर है, मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो इट इज इन अ ब्लड सीरम, इट इज 80% ऑफ ब्लड सीरम इट इज प्रेजेंट ओवर देयर, ओके। एंड व्हाट इज द IgG का फंक्शन क्या होगा, तो इट इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, इसमें इन्वॉल्व होगा वो फेगोसाइटोसिस। मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनको फेगोसाइटोस करने का, डैमेज करने का, डैमेज दैट मींस पूरा डिग्रेड कर देंगे उसको, तो उसके लिए फेगोसाइटोसिस में IgG काम आएगा, राइट। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द IgA जो है वो सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, व्हिच इज गेटिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, मदर के मिल्क में से जो एंटीबॉडी मिलती है दैट इज IgA, एंड दिस एंटीबॉडी व्हिच इज सीक्रेटेड इन म्यूकस सलाइवा एंड टीयर, राइट। तो म्यूकस सलाइवा और सलाइवा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही वो इट विल एंटर टू द बॉडी इट विल क्लियर दैट, राइट। तो वो पैथोजेंस को सबसे पहले इसके थ्रू प्रिवेंट करता है, इट इज स्टार्टेड प्रिवेंटिंग फ्रॉम पैथोजन टू एंटर इन द बॉडी। देन IgE सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन क्यों है, क्योंकि व्हेन पैथोजन एंटर बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन दिखाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि व्हेन पैथोजन एंटर टू योर बॉडी स्टार्ट शोइंग रिस्पॉन्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वी विल टॉक अबाउट एलर्जी इन डिटेल, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, दैट टाइम विल डिस्कस व्हाट इज इट एग्जैक्टली फंक्शन, ओके। देन IgD इट रिस्पॉन्ड्स एज बी सेल रिसेप्टर्स, तो जो बीटा बी सेल्स है उस बी सेल्स के ऊपर वो रिसेप्टर का काम करेगा, इट विल डिटेक्ट द एंटीजन को डिटेक्शन का काम करेगा, राइट। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, इस एंटीबॉडीज का पर्टिकुलर फंक्शन है, फाइन। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे, which cell will be involved in the cell mediated immunity, which cell is involved in the cell mediated immunity, lymphocytes and T lymphocytes. which lymphocytes are involved, see this antibody mediated that will come into the humoral response। जो ह्यूमरल रिस्पांस दे रहे थे अभी तक हमने यही बात की कि ये एंटीबॉडीज जो है सारी ह्यूमरल रिस्पांस के अंदर आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड करना है, IgG जो है इट इज अ प्लेसेंटल एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी है, प्लेसेंटल एंटीबॉडी, जो प्लेसेंटा से मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, तो इट इज प्लेसेंटल, ठीक है, दैट इज प्लेसेंटल, ओके। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक सेल mediated immunity। Cell mediated immunity that means the immunity which is shown by T cells। जो T cells होते हैं उनके हेल्प से जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको हम क्या कहते हैं, that is referred to as a cell mediated immunity। अब ये जो T cells हैं, these T cells are the lymphocytes, right, it is the lymphocytes। Where these lymphocytes are synthesized, that we know that T lymphocytes are produced in a bone marrow but matured in thymus, so it produced by bone marrow। so bone marrow produce करता है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। it is produced by bone marrow and mature in thymus
मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, इसीलिए उसका नाम भी क्या दिया हुआ है, टी सेल्स दिया हुआ है, राइट। लास्ट टाइम वी हैव टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टी सेल्स। 3 types. टाइप्स ऑफ टी सेल्स में कौन कौन से टी सेल्स के बारे में बात की थी हमने, टी हेल्पर सेल्स, टी एच सेल्स के बारे में बात की थी, टी सप्रेसर सेल्स एंड टी साइटोकाइनिन सेल्स आते हैं, राइट। टी हेल्पर सेल्स के अंदर एक टी हेल्पर सेल जो बी को एक्टिवेट करेगा और एक टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द सेल्स ओवर हियर, राइट। नाउ ये सेल्स कैसे काम करते हैं, हाउ दे वर्क, कैसे ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, व्हाट इज इट, कि ह्यूमरल एंटी ह्यूमरल रिस्पांस जो है, इट इज द रिस्पांस बाय यू कैन से दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के बाहर आउटर सरफेस के ऊपर जब एंटीजन आता है तब जो रिस्पांस मिलता है वो एंटीबॉडी के थ्रू मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिस्पांस। बट इफ एंटीबॉडीज आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट एंटीजन्स और एंटीजन बॉडी में एंटर सेल के अंदर एंटर हो गए तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, सो दैट टाइम्स टी सेल शोज द रिस्पांस। उस टाइम कौन रिस्पांस देगा, टी सेल्स। अगेन बी सेल, टी सेल का फंक्शन है टू एक्टिवेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कि टी हेल्पर सेल्स ने बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ओके, अब एंटीबॉडी का काम क्या है, तो एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, कि वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, कोई भी सेल है उसके सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट है। सो व्हेन एंटीजन प्रेजेंट, व्हेन एंटीजन इज प्रेजेंट, Start. okay, so here what we were talking about, humoral response जो है it is showing by extracellular responses, but cell mediated immunity which is done by the T cells, it shows the intracellular response। intracellular response का मतलब क्या होगा यहाँ पे, Inside the cells. सपोज कि एंटीबॉडी फेल हो गई एंटीजेंस को प्रोटेक्ट करने में, हमारे सेल्स को एंटीजन से प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंटीजन विल एंटर टू अवर सेल, वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। व्हेन इट इज एंटर, तो आफ्टर दैट जो इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, टी सेल्स करते हैं, ठीक है। सो हाउ इट विल वर्क, तो सपोज कोई भी सेल्स अगर हम ले, सो देयर इज अ सेल, दिस सेल इज हैविंग द इन्फेक्शन, यहाँ पे एंटीबॉडी तो प्रेजेंट थी, एंटीबॉडी के बाद टी साइटोकाइनिन सेल्स आर देयर, तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, दिस इज द सेल टी साइटोकाइनिन Which produce chemicals to kill phagocytes. right, which produce a protein or a chemical to protect the cell, to kill the particular pathogenic cells। okay, so here we have a, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, and then this antigens when entered into it, what will be happen, it will enter to the cell, this is the antigens which is enter over here, ये एंटीजन यहाँ पे एंटर हो गया। when antigen enter over there, what will be happen, this cells, ये जो टी साइटोकाइनिन सेल्स होते हैं, मैं टी साइटोकाइनिन को ऐसे बता रही हूँ कि दिस इज द टी सी सेल्स, कौन से सेल्स, ये टी सी सेल्स, तो ये इनके साथ ये टी सी सेल्स यहाँ पे एक एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करेगा, तो यहाँ से व्हाट टी सी सेल्स विल बी डू, तो टी सी सेल्स प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन्यूल्स, व्हिच सेल प्रोड्यूस टू टी साइटोकाइनिन सेल्स, दिस टी साइटोकाइनिन सेल्स प्रोड्यूसेस granules, these granules are present in the TC cells, then with the help of this path these granules are transported in the infected cell, this is called as infected cells। ठीक है, क्या हुआ कि कोई सेल है, सेल के साथ एंटीजन बाइंड हो गया, और एंटीजन बाइंड हो गया दैट मींस एंटीजन ने उसको सेल को इन्फेक्ट कर दिया। when that cell get infected, what will happen, this TC cell get activated and TC cell क्या करता है, तो it start producing granules inside it, वो अपने पास क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, granules, तो वो granules क्या है, तो it is a cytokine, right, it is a specific type of chemicals जो प्रोड्यूस करता है कौन, TC cell प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेल what will do, it will transfer the granule inside the infected cell। Now this infected cell के अंदर जैसे ही granule आ जाएंगे, what they will do, they will act on antigens, right, they will
एक्ट ऑन एंटीजेंस। किसके ऊपर एक्ट करेंगे? Antigen. एंटीजेंस के ऊपर एक्ट करेंगे। बट यहाँ पे तो बहुत सारे सेल इन्फेक्टेड हो गए होंगे, तो उससे पहले क्या होता है, तो उससे पहले ये प्रोड्यूस करने से पहले टी सेल्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इन्फेक्शन का पता चलेगा, टीसी सेल्स विल बी मल्टीप्लाइड सेल। सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। इट विल प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे। देन इट विल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ग्रेन्यूल्स। After the production of the granules, it will transfer that granule to the infected cell. So when granules are entered to the infected cells, this granule will be react with pathogen और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एंटीजन, जो एंटीजन को रिप्रोडक्शन नहीं करने देंगे। So what will be happen? Second one, granules does not allow antigen to produce, antigen to reproduce। क्या करेंगे? वो एंटीजन को रिप्रोड्यूस नहीं होने देंगे। रिप्रोड्यूस नहीं होने दे रहे मतलब उनका नंबर तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है। एंड देन बर्स्ट द सेल, सेल को क्या कर देते हैं? बर्स्ट कर देते हैं। तो जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर ग्रैन्यूल गया, जो पैथोजन है उसको अलाउ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने के, तो उसको क्या कर देंगे? बर्स्ट कर देंगे। बर्स्ट कर देंगे मतलब वो सेल डेड हो गया। तो लाइक दैट दिस टी सेल विल वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी हैपन, आई जस्ट क्विकली रिवाइज इट कि व्हेन देयर इज अ इन्फेक्शन होता है वो भी सेल के अंदर, तो एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ पे ये एंटीजन है, दिस इज एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ये इन्फेक्ट हुआ, दिस बिकम इन्फेक्टेड सेल्स। When this become infected, what will be happen? The TC cell get activated, they multiply in a large number. After multiplication, they produces granule. क्या produce करते हैं? Granule. Granules are nothing but it is a cytokinin. It is a chemical which involved to kill the pathogen inside the infected cells. So after that, that T cells, this TC cells will transfer this granule into the infected cell and granule will kill the pathogen, so the multiplication of the pathogen will not be occur, and pathogen का multiplication नहीं होगा मतलब वो दूसरे cells को infect नहीं कर पाएगा, right? So this is the mechanism of T cells, के how T cells work, okay? And we have already discussed कि T helper cell क्या काम करता है, T suppressor क्या करता है? Yes. It is involved for our suppressing our immune system, right? So ये cell mediated immunity हमें कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो during you can say कि during the transplantation, अब transplantation क्या होता है? और during transplant what is transplant? तो it is the transfer of organ from one person to another one, right? पर transplant की कब जरूरत पड़ती है? When we are going for transplant, when the person is or their organ is completely damaged. जब किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कोई ह्यूमन पेशेंट है, उनका ऑर्गन जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, अब वो सर्वाइव करेगा नहीं, तो उस टाइम पे ऑर्गन या टिश्यू और सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है उस पेशेंट से कोई डोनर की हेल्प से, डोनर से वो एक्सेप्टर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। एंड वी नो दैट कि छोटी सी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में आती है, सो आवर बॉडी स्टार्ट शोइंग क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट, राइट? हमारी बॉडी क्या करने लगेगी? रिस्पॉन्स दिखाएगी। तो उस रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए जो इम्यूनिटी हमारे अंदर वर्क करती है वो कौन सी है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ द TS cells which is involved for suppressing our immune system, right? अब जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसको हमने ट्रांसप्लांट करना है कि क्या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो व्हाट वी कैन ट्रांसप्लांट? We can transplant the organs like liver, kidney, then heart. Okay, such type of organs can be transplanted, or we can say that eyes, or we can transplant the tissues as well. हम tissues को भी transplant कर सकते हैं, ठीक है? So before transplantation, what should be done? Transplantation करने से पहले क्या करना पड़ता है? तो there is two person. One is acceptor और second one is donor. Acceptor कौन होता है? जो patient है, जिनको सब कुछ डैमेज हो चुका है, सपोज कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, तो
वो पर्सन पेशेंट जो है उसको एक्सेप्टर कहेंगे, और जो किडनी दे रहा है उसको क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में ट्रांसप्लांट करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू गो फॉर, वी नीड टू गो फॉर मैचिंग, राइट। तो जो मैच हम करते हैं तो क्या मैच करते हैं, तो हम मैच करते हैं ग्राफ्ट। क्या मैच करते हैं, ग्राफ्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्ट ओवर हियर, ग्राफ्ट क्या होता है, तो ग्राफ्ट इज एनी टाइप ऑफ ऑर्गन और अ टिश्यू व्हिच नीड्स टू बी ट्रांसप्लांट। किसी के अंदर से टिश्यू को ट्रांसप्लांट करना है या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है, तो जितना पोर्शन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसको आप क्या कहेंगे, ग्राफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफ्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, यू कैन से दैट अ टिश्यू और अ ऑर्गन which is going to transplant, कोई भी टिश्यू है और ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट करना है, उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट। एंड बिफोर गोइंग फॉर डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था भाई चलो इसकी किडनी है हम कहते हैं, आपने मूवी में भी सुना होगा कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं उनकी किडनी मैच हो जाएगी, रिलेटिव में जो होते हैं उनका मैच हो जाएगा, राइट। बट समटाइम इट इज आल्सो हैपन दैट कि उनका भी मैच नहीं होता, किसी और का अननोन पर्सन का भी ये ग्राफ्ट मैच होता है। इसीलिए डायरेक्ट विदाउट नोइंग डायरेक्टली ये नहीं किया जाता। तो ग्राफ्ट मैचिंग में क्या क्या करेंगे ये लोग, तो ग्राफ्ट मैचिंग जो है इसके अंदर जो टिश्यू और ऑर्गन को ग्राफ्ट पहले ट्रांसप्लांट करना उसको मैच करेंगे, देन मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप एज वेल, उसका ब्लड ग्रुप भी देखना पड़ेगा ना, विदाउट दैट ब्लड ग्रुप विल नॉट वर्क, राइट। दोनों ब्लड ग्रुप मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, राइट। ग्राफ्ट मैचिंग में ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, उसके ग्राफ्ट उसका जो टिश्यूज है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इफ दैट पर्सन इज नॉट द एक्सेप्टर और डोनर इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, लाइक उसको क्या कोई कैंसर तो नहीं है, एड्स तो नहीं है, लाइक दैट सर्टेन थिंग्स आर आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि हमें पेशेंट को बचाना है ना कि पेशेंट को दूसरी डिजीज देनी है, राइट। सो ड्यू टू दैट that graft matching should be done, and this graft matching after the matching as well, जैसे ट्रांसप्लांट कर दिया ये मैच हो गया, उसके बाद अगर ये ऑर्गन या टिश्यू डोनर के एक्सेप्टर के अंदर ट्रांसफर हो भी गया तो भी हमारी बॉडी क्या करेगी, विल स्टार्ट शोइंग रिस्पॉन्सेस, राइट। तो वो रिस्पॉन्स ना दिखाए इसकी वजह से हमारी बॉडी को दिया जाता है पूरी थ्रू आउट द लाइफ, जिनके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है उनको थ्रू आउट द लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, जो ड्रग्स होती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करके रखेगी, सप्रेस। क्यों, क्योंकि आवर बॉडी एनी टाइम इट हैपेंस दैट आवर बॉडी दैट पेशेंट की जो बॉडी है वो रिएक्शन दिखा सकती है और जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है या ऑर्गन है उसको फेल कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। तो रिजेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी कहाँ से आती है, दैट इज फ्रॉम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसी के हेल्प से वो रिजेक्ट करने की भी कैपेसिटी आएगी, राइट। सो द individual, इसीलिए this is referred to as and which is indicated or which is run by T cells, जो T सेल से रन हो रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसप्लांट होगा तो हमारी बॉडी तब तक सप्रेस रहे उसके लिए काम करती है, बट इफ इट इज आवर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग देन दैट विल फेल एज वेल, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। After cell mediated immunity, let's start with the topic immunization. In your NCERT it is given active and passive immunization, okay, or passive immunity. So that we have already discussed in our previous lecture. So let's start immunization. अब immunization उसका जो word है, the name itself saying that immunization का मतलब क्या है? We have been talking about immunity, right? Immunity का मतलब क्या होता है? To protect it, defense. right? It is a defense mechanism which protect our body from the pathogen, right? So यहाँ पे immunization का मतलब क्या होता है? So it is the process. Immunization क्या है? It's a process whereby you can say definition अगर immunization की हमें learn करनी है तो कैसे करेंगे कि immunization is the process whereby person is made immune, person को immune बनाना है। immune बनाना मतलब उसको resistant बनाना है towards pathogen, to made immune to the person or made resistance towards the
पैथोजन, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इम्यूनाइजेशन। और किसकी हेल्प से हम लोग उसको रेजिस्टेंट बनाएंगे? विच विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी विल मेक देम रेजिस्टेंट, और अपने आप को हम कैसे रेजिस्टेंट बना सकते हैं? Healthy food. इज इट हेल्दी फूड ओनली? Exercise. बहुत चर्चा में आ रही है। Exercise, yoga. व्हाट इज इट? वैक्सीन। अब तक बहुत सारी जो डिजीज हमको अभी हमें नहीं हुई है, वो सारी डिजीज की वैक्सीन हमने लेके रखी हुई है, राइट? तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस वेयर बाय टू मेक पर्सन इम्यून और रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस में कोई भी आ सकता है आपका, ठीक है? पैथोजेंस में BS वाले जो पैथोजेंस है, पर उसमें हेल्मिंथन्स जो है उन लोगों की वैक्सीन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ओनली वी हैव वाइरल और बैक्टीरियल टाइप ऑफ ड्राइव, ओके? सो रेजिस्टेंस टू microorganisms or a pathogen by vaccine, right? Now what is vaccine? Dead So vaccine organism. क्या है? Dead Dead, organism. right? It is a dead or inactivated organisms. क्या है? It is a dead or inactivated organism which is incorporated or injected in the body. बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से our body will show which response? Immune response. Immune response. तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या दिखाएगा? कौन सा रिस्पॉन्स कहेंगे उसको हम? First फर्स्ट रिस्पॉन्स, line दैट इज द है। प्राइमरी वन। पहली बार अगर हमने आप ये वैक्सीन को इंजेक्ट किया, आपने कभी सुना है कि पोलियो वैक्सीन पीने से बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है? कभी सुना है? No. या इंजेक्शंस यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको नाउअडेज नंबर ऑफ वैक्सीन्स यूटिलाइज लगाई जाती है, राइट? तो जो वैक्सीन्स है, तो समटाइम्स डॉक्टर ऐसा भी कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद उसको फीवर आ जाता है, ये भी कहते हैं। वो फीवर क्यों आता है? Reaction होता है। रिएक्शंस बॉडी शो कर रही है कि वैक्सीन आई, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शंस शो करती है, दैट्स व्हाई इट इज हैपन। सो ओवर हियर यू कैन सी कि वैक्सीन जो है इट इज अ डेड और इनएक्टिवेटेड और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन से कि जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड इन द बॉडी, ओके? जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? दैट इज विद द वैक्सीन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जिससे हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करना है, रेजिस्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? नाउ दिस इम्यूनाइजेशन इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, दो है। कौन से दो हो सकते हैं? Passive and active. Right. It's a passive and active. So one is referred to as a active immunization, and second one is referred to as passive immunization. Okay. जो active immunization है उसके अंदर क्या करते हैं? तो active immunization के अंदर mild dose of disease causing organism mild dosage of disease causing organism, मतलब अगर आपकी बॉडी को एक्टिव बनाना है, राइट? तो क्या किया जाता है? द ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है कॉज करते हैं, सपोज कि फॉर एग्जांपल कौन सी डिजीज कॉजिंग, तो कौन सी डिजीज है? मीजल्स है, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, मिजल्स, मम्स जिसको हम लोग कहते हैं, दाने होते हैं मिजल्स हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो वो जो मिजल्स है उसको कॉज करने के लिए जो पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल, उसका माइल्ड फॉर्म बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दिया जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या दिखाएगी? रिस्पॉन्स दिखाती है। बट जो रिस्पॉन्स वो दिखाती है वो रिस्पॉन्स कैसा होता है? इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स,
कौन सा रिस्पॉन्स होता है वो? इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स, राइट? सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है? वो भी पैथोजेंस जो है जो डिजीज कॉज करते हैं उनका वेरी माइल्ड डोजेज के बहुत ज्यादा हार्म ना करे, एकदम माइल्ड डोजेज दिया जाता है बॉडी के अंदर, जिससे वो डिजीज तो डिजीज करने की ट्राई करेगा, राइट? पर हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट में एक्टिव हो जाएगी। बट वो जो रिस्पॉन्स दिखाता है वो रिस्पॉन्स कैसा होगा बॉडी का? वो स्लो रिस्पॉन्स होगा, राइट? हाँ, एक्टिव होते हैं, इसीलिए तो एक्टिव माइल्ड, इसीलिए तो एक्टिव ही होंगे ना, वो एक्टिव नहीं होंगे तो कैसे होगा वो? माइल्ड डोजेस इसीलिए है कि बहुत माइन्यूट सा डोज दिया जाएगा। फिर है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा? फास्ट रिस्पॉन्ड होगा, वो फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, पर पैसिव में कैसे करेंगे? डोज Fast थोड़ा हाई respond। होगा। तो दैट इज व्हाट दिस इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन। पोलियो वैक्सीन्स के थ्रू तो होता ही है, पर क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन में? व्हाट विल कम? what we added in the passive immunity? What is passive immunity? प्रोसेस एंटीबॉडीज डायरेक्टली ऐड कर देंगे बॉडी के अंदर, राइट? दूसरा कौन सा है? दूसरा व्हाट इज इट? एग्जांपल के अंदर है एंटी टॉक्सिन्स, राइट? फॉर टिटनस, स्नेक बाइट, right? So what are they? They are referred to as passive immunization. कि antitoxins already हमारी body में present है, so what will be happen? कि tetanus, okay, when tetanus होगा तो tetanus के time पे process antibody को incorporate directly करवा दिया जाएगा, so it will directly act on that organism and our body will be immunized, right? And after that the snake venom जो होता है उसके हेल्प से ये जो toxin हमने body के अंदर enter किया है, which is already produced that antibody against that toxins, so जैसे ही toxin अंदर आएगा antibody उसके against में fight करने लगेगी, right? So that is the passive immunization. तो क्या कहेंगे हम लोग? passive immunization कहेंगे, right? समझ में आया? कुछ confusion नहीं है? passive immunity एक बार वापस से पढ़ लोगे तो you will get an idea कि where why we have kept it over here. Okay? Now next one after that it is vaccination. So अभी हम लोगों ने पढ़ा कि This is referred to as immunization और वैक्सीन की हेल्प से होती है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? So वैक्सीनेशन के अंदर क्या होगा? यही to provide vaccine for a particular diseases, right? So you can say vaccination is a process again providing vaccine to make body resistant. Same to same, just little variation we need to understand over here. Immunization vaccine के through process होगी, vaccination मतलब providing vaccine to make body resistant towards pathogens, right? In that vaccine what is present? It is an inactive, no need to write it again there, it is a dead or inactive, or you can write it killed disease causing organism or in the body. So I will write it over here, injection of dead, killed, or you can say that inactivated organisms in the body to make immunity active, right? And we know that how it will become active. जैसे ही ये पैथोजन अंदर जाएंगे तो first time primary response होगा, but when it comes second time, right, actual infection is occur, that time our body will show vigorous effect. So we can ideate injection of dead and killed inactivated organism in the body to make immunity active during actual infection. क्या होगा during actual infection or actual invaders? इन्वेडर का मतलब क्या होता है?
रियल लाइफ इन्वेडर्स का मतलब क्या होगा, जो पैथोजेंस है जो एक्चुअली उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज इन्वेड। इन्वेड मतलब एंटर होना, सेल के अंदर एंटर होना, तो दैट इज इन्वेडर। तो एक्चुअल इन्वेडर्स ऑफ पैथोजन यू कैन राइट इट ओवर हियर, और डायरेक्टली एक्चुअली एक्चुअल इन्फेक्शन। ओके, दैट इज इट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ vaccines given to human or a child. Find out the number of vaccines given to human. Individual को देने जाने वाली जो वैक्सीन होती है, वो वैक्सीन के बारे में आपको फाइंड करना है कि कौन सी। यू हैव टू लिस्ट आउट ऑल द वैक्सीन्स, which vaccines are given to children or what age, till what age it is given। जैसे कि पोलियो है तो 1 to 5 years के चिल्ड्रन को दिया जाता है, till 5 years। जब तक 5 साल खत्म नहीं होता उसके डोजेस 5 years के अंदर सेपरेटेड आउट होते हैं, जिस हिसाब से उनको कहते हैं ना ब्रो बोन जिंदगी के। सो ओनली 2 drops ऑफ पोलियो इज गिवन, राइट? समझ में आ रही है बात? सो इट इज लाइक दैट, फाइन। सो दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सो हियर योर एंड नाउ ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। बट उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन्स बनती कैसे हैं, हाउ इट इज डन। सो यू हैव स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी। इन दैट बायोटेक्नोलॉजी व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, बायोटेक में हम लोगों ने आप लोगों ने डिस्कस किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? सो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक वैक्सीन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। Recombinant DNA technology helps to produce vaccines. Okay, so ऐसे and जैसे ही वैक्सीन प्रोड्यूस होगी उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट ओनली इट विल अंडरगो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाद में होगा जब वैक्सीन एक बार प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके बाद वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाएगी या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगी, देन ओनली देन लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल बी डन। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बना दी मतलब लाओ इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दे, क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट भी लगेगा, राइट? सो लाइक दैट। एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई गई है, पर उसमें से ओनली फ्यू वैक्सीन्स वी आर यूजिंग इट। तो वो वैक्सीन्स के नाम आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। और दूसरी जो रिकॉम्बिनेंट से वेरी इफेक्टिवली बनाई गई है दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी जो वैक्सीन है दैट इज मेड from the recombinant with the help of the recombinant DNA technology और the biotech के हेल्प से ये बनाई गई है, ठीक है? Here you can write it RDNA technology. Okay, so this is the topic is over here. Vaccination is done. I hope you people are not getting any of doubt, or if you have a doubt you can ask me. No. Okay, then copying from the